ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں 1000 ارب روپے کا وفاقی ترقیاتی بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے معاشی اہداف کی منظوری دے دی ہے۔ کونسل نے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پلان کی بھی منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے 4.2% جی ٹی پی گروتھ کی منظوری دی، جبکہ بلوچستان میں N25 کے لیے بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی ہے۔ N25 کے لیے 120 ارب روپے کے بجائے 100 ارب روپے کا پیکج منظور ہوا، جبکہ برآمدات کا ہدف $35 ارب مقرر کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اجلاس میں قومی ترقیاتی پلان PSDP میکرو اکنامک اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نئے مالی سال کی معاشی شرح نمو، زراعت، صنعت، سروسز سیکٹر کے اہداف کی منظوری سے متعلق مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو تسلیم کرنے والے ابتدائی ممالک میں شامل تھا۔ یہ بات انہوں نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانے میں منعقدہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی آزادی کی 249ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک جمہوری روایات اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 1950 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان شراکت داری شروع ہوئی۔ پاکستان نے ہمیشہ امن و ترقی کے لیے کام کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت جانی نقصان اٹھایا۔ میں نے پہلگام واقعے کی عالمی سطح پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پہلگام واقعے پر ہماری شفاف تحقیقات کا مطالبہ رد کیا گیا۔ ہم نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلگام واقعہ فالس فلیگ تھا۔ بھارت کو الزام لگانے سے پہلے پہلگام واقعے کے شواہد پیش کرنا چاہیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے ٹرمپ نے بہتر اقدامات کیے۔ جنگ بندی میں ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے جنگ کے دوران جھوٹی خبریں پھیلائیں، اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ لکھا زی نیوز NDTV آج تک نے زنسری خیز پھیلا کر بھارتی عوام کو گمراہ کیا، غیر متعلقہ فوٹیجز اور ویڈیو گیمز تک کا استعمال کیا۔ بھارتی میڈیا نے آپریشن بنیانو مرسوس کے دوران جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ معروف امریکی جریدے نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارتی نامور چینلز نے ایسا جھوٹ پھیلا کر اپنی عوام کو گمراہ اور افواہوں کو ہوا دی۔ نیوز رومز پر ریٹنگز، سپیڈ اور حکمران جماعت کے موقف سے ہم آہنگ ہونے کا دباؤ حاوی تھا۔ بھارتی میڈیا نے ہمیشہ گمراہ کن پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلا کر حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ 9 مئی کو بھارتی میڈیا نے پاکستان میں بغاوت اور کراچی پر مبینہ بحریہ کے حملے کی جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ ان جھوٹی خبروں کی بنیاد غیر مصدقہ ذرائع سے موصول ہونے والے واٹس ایپ پیغامات اور سوشل میڈیا دعوے تھے۔ امریکی جریدے کا اپنی رپورٹ میں مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کچھ بھارتی اینکرز نے غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اس کا بھی دفاع کیا۔ یہ واقعہ محض صحافتی غلطی نہیں بلکہ ایک منظم بیانیے کا حصہ ہے۔ ایسی جھوٹی ہائپر نیشنلسٹ خبروں نے رجحانات، سیاسی دباؤ اور حکومت کی خاموشی کو مزید تقویت دی۔ بھارتی سکھ ایک مرتبہ پھر مودی سرکار کے نشانے پر۔ بھارتی پولیس نے پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے معروف یوٹیوبر جسبیر سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ DGP پنجاب نے الزام عائد کیا ہے کہ یوٹیوبر جسبیر سنگھ کا تعلق پاکستانی نیٹ ورک سے تھا، جو کہ جسبیر سنگھ، جوتی ملہوترا اور شاکر عرف جٹ نندوا کے ساتھ رابطے میں تھا۔ گودی میڈیا بھی پاکستان اور سکھ برادری سے متعلق پروپیگنڈا کرنے سے باز نہ آیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جسبیر سنگھ نے 2020، 2021 اور 2024 میں پاکستان کے دورے کیے اور اس کے موبائل سے پاکستان سے جڑے نمبرز برآمد ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے جان محل یوٹیوب چینل کے خالق جسبیر سنگھ پر خفیہ نیٹ ورک کا حصہ ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ جسبیر سنگھ کا احسان الرحیم عرف دانش سے بھی رابطہ تھا۔
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि ख़ित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। दुनिया ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों की तारीफ़ की। भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर मातम हो रहा है। दुनिया को बता दिया भारत ने जवाहरियत की तो भरपूर जवाब देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान का सैफ़रीकी इजलास हुआ। दौरा चीन के दौरान दो तरफ़ा मुलाकातें भी हुईं। दो तरफ़ा और सैफ़रीकी मुलाकातें गैर रस्मी थीं। इस फोरम पर कहा कि हमने भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश भी की है। दोस्त ममालिक ने हमारी तहकीकात की पेशकश को सराहा। इसहाक़ डार ने कहा कि भारतीय इल्ज़ामात और जवाहरियत के मामले पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। अल्लाह ने हमें 10 मई को कामयाबी दी। वक्त ने बता दिया कि जो हम कह रहे थे वो सच था। पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। भारतीय इल्ज़ामात और जवाहरियत के मामले पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका है। दुनिया ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों की तारीफ की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान बलूचिस्तान में 32 हमले किए गए। जिस तरह हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, इसी तरह बलूचिस्तान में भारत की प्रॉक्सीज को भी शिकस्त होगी और बलूचिस्तान में अमन वापस लौटेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उसे जंग में और बयानिए दोनों में शिकस्त हो गई। फील्ड मार्शल ने उन्हें जो मार खिलाई है और जो उन्हें बुरी शिकस्त हुई है, तो उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं। उनके अपने लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और वो अपनी खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी को अपनी खारजा पॉलिसी का एक अहम जुज़ बनाया है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल इसका सबूत है। इसी तरह बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान मौजूद है। कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है जो खुद को कारोबारी शख्स जाहिर करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था। कुलभूषण उसी खारजा पॉलिसी के तहत यहाँ दहशतगर्दी करवा रहा था। उनके वज़रा और मोदी हमेशा अपनी तकरीर में बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं क्योंकि उनके हैंडलर्स यहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं। फितना अल हिंदुस्तान से हमारी फोर्सेस बड़े तरीके से निमट रही हैं। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल से पैगाम जारी कर दिया। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने अडयाला जेल से अपने पैगाम में कहा है कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आईनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसलिए मैं अब बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीकी सरबराही करूँगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे और सलमान अकरम राजा हिदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। बानी पीटीआई ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि तहरीक का लाया अमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, GDA और महारंग बलोच को भी दावत देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि हम संबड़याल में होने वाले इलेक्शन को नहीं मानते। इलेक्शन में धांधली की गई। ये इलेक्शन नहीं था बल्कि बना बनाया ड्रामा था। इस्लामाबाद में पार्टी की रहनुमा आलिया हमजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख वकास अकरम ने कहा कि पुलिस ने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला। इलेक्शन में पुलिस को रुकावट की इजाज़त नहीं होती। जो फस्तायत गुंडागर्दी पंजाब हुकूमत ने की उसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में PTI ने धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। शेख वकास अकरम ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं था क्योंकि इंतखाबात शफाफ अमल का नाम है। वोटिंग में धांधली हुई और बैलेट बॉक्सेस भरे गए। इलेक्शन में किसी तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया गया। जहां 1300 वोट थे वहां 1400 वोट कास्ट किए गए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने PTI की जानिब से समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में धांधली के आयद किए गए इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा है कि फाफिन की रिपोर्ट PTI के लिए काफ़ी है। समड़ियाल के अवाम ने बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानी को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि शिकस्त तस्लीम करने के बजाय पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया पर इल्ज़ामात लगाना PTI का पुराना वतीरा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह JUI की रिहाइशगाह पहुंचे और उनसे मुलाकात की जिसमें मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया को पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ बता दिया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत की जानिब से सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। भारत ने बगैर तहकीकात और सबूत के पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को तहकीकात की पेशकश की। आलमी बरादरी भारत की जहरियत का नोटिस ले। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि दहशत गर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भारत ने जहरियत करते हुए मासूम शहरियों को निशाना बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली बार अपना वजन कम होने पर वजाहत दे दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों की जानिब से वज़न कम होने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर बात करते हुए दावा किया है कि उन्होंने वर्जिश और तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील करके अपना वज़न कम किया। उन्होंने सहाफ़ियों को भी वज़न कम करने का फार्मूला बताते हुए उन्हें तजवीज़ दी कि वो भी चीनी और रोटी का इस्तेमाल कम करें। बिलावल भुट्टो ने यह भी तजवीज़ दी कि बेहतर नताइज हासिल करने के लिए जिम जाना चाहिए। शहर कैद में एक और शहरी नगलेरिया के बायस इंतकाल कर गया। महकमा सेहत सिंध ने कराची में नगलेरिया से एक और शहरी के जान बहक होने की तस्दीक करते हुए बताया कि मुतवफ़ी औरंगी टाउन का रिहायशी था। महकमा सेहत के मुताबिक मरीज़ को 28 मई 2025 को अलामात ज़ाहिर हुई, जिसके बाद उसे 30 मई को अस्पताल में दाखिल किया गया। उसके बाद 2 जून को होने वाले टेस्ट में नगलेरिया फ्लोरी की मौजूदगी की तस्दीक हुई और फिर वो 2 रोज़ के अंदर इंतकाल कर गया। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में रवां साल नगलेरिया से जान बहक होने वालों की तादाद 2 हो गई और दोनों का ताल्लुक कराची से ही है। उधर बलूचिस्तान के ज़िला केच के इलाके तम के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ नौरज़ई को अगवा कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर केच ने असिस्टेंट कमिश्नर के अगवा की तस्दीक कर दी है। लेवीज़ ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान के ज़िला केच में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ नौरज़ई को नामालूम मुसल्लह अफराद ने सरंकीन के मकाम से अगवा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तुरबत और सरंकीन के मुख्तलिफ इलाकों के घेरे में लेकर अगवाकारों की तलाश शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर केच ने असिस्टेंट कमिश्नर के अगवा की तस्दीक करते हुए कहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ सरकारी गाड़ी पर अहल खाना के हमरा ईद की छुट्टियों पर कोयटा जा रहे थे कि तुरबत के करीब 6 मुसल्लह अफराद ने गाड़ी रुकवाई और अहल खाना और महाफिज को छोड़कर असिस्टेंट कमिश्नर को अपने साथ ले गए। वज़ीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी ने मली जेल की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान महकमा जेल का कहना है कि वज़ीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी ने मली जेल का दौरा किया। जेल हुकाम ने अली हसन जरदारी को कैदियों के फरार से मुतालिक तफसीलात बताईं। वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने मली जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने जेल के दरवाज़ों का जायज़ा लिया। दूसरी जानिब कराची में मली जेल वाक़े के बाद महकमा जेल में अहम इंतज़ामी इक़दाम किए हैं। महकमा जेल में इंतज़ामी ओहदों पर तैनातियों के लिए कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं। ज़राए ने बताया कि क़ायम मक़ाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने ऑर्डीनेंस के इजरा की मंजूरी दे दी है। ऑर्डीनेंस के जरिए इंतज़ामी और रूल्स में तब्दीलियाँ की गई हैं। ज़राए के मुताबिक IG जेल, DIG और जेल सुप्रिटेंडेंट के ओहदों पर सिविल अफसरान तैनात हो सकेंगे। अहम खबर आपको देंगे हैदरी थाने की हदूद से, जहां गैर कानूनी पार्किंग माफिया कानून से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। बार बार नुमाइंदा NTN की निशानदही के बावजूद SHO हैदरी, जाहिद चौधरी और DSP जावेद यूसुफ पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, बात करेंगे। रिपोर्टर NTN इमरान उद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा बार बार निशानदही के बावजूद क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं है?
इमरान, आपसे दोबारा राबता करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। खबर आपको दे रहे हैं हैदरी थाने की हदूद कराची, जहां पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया कानून से ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। बार बार नुमाइंदा NTN की जानिब से इस बात की निशानदही की गई, लेकिन इसके बावजूद SHO हैदरी जाहिद चौधरी और DSP जावेद यूसुफ पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और गैर कानूनी जो पार्किंग है वो यहाँ पर धड़ल्ले से की जा रही है। बार बार इस बात की निशानदही की गई, ये मसला सामने लाया गया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जो पुलिस है वो इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही है गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ। एक बार फिर से बात करेंगे, इमरानुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, अगर आप राबता करते हैं, उनको इस बात की निशानदही करते हैं, तो वो जवाब क्या देते हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात हमारी टीम हैदरी थाने के मुख्तलिफ स्पॉट पर मौजूद थी, जहां गैर कानूनी पार्किंग का धंधा उरूज पर जारी है और शहरियों से वसूल की जा रही है। कहीं 50 और कहीं 100 रुपए तक वसूल की जा रही है। पार्किंग की मद में जब हमने मुताल्ला थाना SHO चौधरी राय से राब्ता किया तो उन्होंने कोई जवाब देना मुनासिब ना समझा और उसके बाद हमने DSP गुलबर्ग टाउन से राब्ता किया, जिनके पास इस वक्त SP गुलबर्ग टाउन का भी चार्ज है। उन्होंने भी सिर्फ इतना कहा कि मैं भेजता हूं मोबाइल आपकी तरफ, और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये तमाम मामला 2.5 घंटा जारी रहा और बिना किसी कार्रवाई के सबको फरार कर दिया गया। अब देखना ये है कि SSP सेंट्रल निशान शफीक सिद्दीकी, DC सेंट्रल और डायरेक्टर KMC चार्ज पार्किंग नबील बलोच साहब इस पे क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं। जी ठीक है इमरानुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट करेंगे, IMF ने बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए हैं। ज़राई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया है। IMF ने मुतालबा किया है कि बजट जून के आखिर तक हर सूरत मंजूर करवाया जाए और मंजूरी और अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे के अहदाफ के मुताबिक होना ज़रूरी है। ज़राए का कहना है ज़राई आमदन पर टैक्स लागू करना बुनियादी शर्त बन चुका है। ईद के बाद इजलास बुलाना भी उसी हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया जा रहा है। IMF का मौक़िफ़ है कि मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए हर शोबे से यकसा रेवेन्यू वसूली जरूरी है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 14 खवारिज मारे गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ताखेल के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जो फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ISPR ने बताया कि फोर्सेस और खवारिज के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गजा में इमदादी मरकज़ के करीब इसराइली बमबारी से 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल जज़ीरा TV के मुताबिक इसराइली तैयारों ने खान यूनिस, रफ़ा, दीरुल बला और गजा शहर में मुतादिद इलाकों को बमबारी का निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ज़्यादातर खुराक के लिए कतार में खड़े थे। गजा के अलशिफा अस्पताल के डायरेक्टर ने खून अतिया करने की फौरी अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा ज़ख्मी लाए जा रहे हैं और खून की किल्लत है। रोज़ाना कई ज़ख्मियों को खून न मिलने की वजह से खो रहे हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के तर्जुमान ने गजा में शहरियों पर हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि शहरियों को खुराक से रोकना भी जंगी जुनून के ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत का मुजाहरा करने वाली भारतीय एयरफोर्स और मुसल्लह अफवाज को तारीखी बदतरीन शिकस्त पर IPL में खिराज तहसीन पेश करके नई तारीख रकम कर दी गई। ये पहला मौका है कि दुनिया भर में अपनी हजीमत का किसी मुल्क की जानिब से अवामी अंदाज में जश्न मनाया गया हो। IPL में फाइनल के मौके पर अपनी नाकाम मुसल्लह अफवाज को ट्रिब्यूट पेश किया गया, जिन्हें गुज़श्ता माह पाकिस्तान के हाथों बदतरीन नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। पाकिस्तान के हाथों तारीखी हजीमत बर्दाश्त करने, राफेल तैयारों के तबाह होने, फौजी चौकियों को नेस्तो नाबूद और एयर बेसिस तबाह होने पर अपने मुसल्लह अफवाज को सराहा, जिस पर दुनिया भर में भारतीय बोर्ड का मजाक बनाया जा रहा है।